Hello students. Today in lecture 2 we will be studying about the chemical properties of metals and nonmetals. In the previous lecture 1 we have studied about the physical properties of metals and nonmetals. Ki how can you justify an element is a metal or a non-metal. So on the basis of their physical and chemical properties you can identify whether an element is a metal or non-metal. If it is malleable, if it is ductile means it is a metal. If it is brittle in nature, that means it is a non-metal. So let us see the chemical properties of metals and non-metals. Okay. So chemical properties. Chemical properties of metals and non-metals can be divided into 5 categories. There are many more categories, but these are the main 5 categories that we will study in basic point of view. But in higher standard, that is in your 10th standard, you will study it in detail. So make the concept clear over here itself so that you cannot face any problem in your higher standards. Okay, students? So, reaction with oxygen, reaction with water, reaction with acid, reaction with bases and displacement reaction are the 5 categories of chemical properties of metals and non-metals जो हम study करेंगे कि how metal reacts with oxygen, how metal reacts with water, how metal reacts with acid, how metal reacts with bases and displacement reaction. ठीक है, आज के क्लास में हम रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और रिएक्शन विथ वाटर देखेंगे. रिएक्शन विथ एसिड एंड रिएक्शन विथ बेसिस एंड डिस्प्लेसमेंट हम लेक्चर 3 में देखेंगे. ओके, नाउ first reaction with oxygen. How do metals react with oxygen? Now before writing any chemical reaction, make sure कि chemical reaction हम इसके basis पे लिखते हैं, that is reactant और प्रोडक्ट के बेसिस पे. ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बेसिस पे हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं. रिएक्टेंट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और एरो के उस साइड दैट इज ऑन द RHS साइड हमेशा प्रोडक्ट लिखा जाता है. नाउ व्हाट इज रिएक्टेंट? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द वन विच पार्टिसिपेट, the substance or the element which participate in a reaction is known as reactant. किसको बोलते हैं reactant? The substance or the element which participate in a chemical reaction is called reactant. Okay, and reactant are always written on the left hand side. तो कोई भी एरो के इस साइड आपको चीज़ मिलेगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो आपका reactant होता है. And what is product? The reactant, or you can say the substance which is formed, the new substance which is formed after a chemical reaction is called product. The new substance which is formed after undergoing the chemical reaction is called product. And products are written on the right hand side, reactant are written on the left hand side. तो कोई भी chemical equation या केमिकल रिएक्शन हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बेसिस पे ही आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में मेटल्स का देखेंगे. सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. क्या बनाते हैं? मोस्ट ऑफ द मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. मेटल है आपका कोई भी, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड्स. अब कौन से मेटल्स है? देयर आर डिफरेंट मेटल्स. जैसे आयरन इज अ मेटल, Fe इज अ सिंबल फॉर आयरन. ठीक है, सिंबल्स आप याद करोगे. ठीक है, सोडियम का सिंबल Na है. ओके, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, सॉरी. आयरन इज अ मेटल, Fe. ठीक है, आयरन आपका एक मेटल है. Then your sodium is a metal, Na, sodium, उसका सिंबल है सोडियम का Na. कॉपर, Cu is a metal. एल्यूमिनियम, Al is a metal.
ये सर्टेन एग्जाम्पल्स है मेटल के जिनके सिम्बॉल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम है, ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देन मैनी मोर, ओके। जिंक है, Zn इज़ अ सिम्बॉल फॉर जिंक, जो हम कॉमनली यूज़ करेंगे अभी एग्जाम्पल्स में, इसलिए मैं आपको पहले वो करवा रही हूँ। मैग्नीशियम, Mg, इट इज़ अ मेटल। ठीक है, सो दिस आर द सर्टेन मेटल्स, जैसे पोटेशियम इज ऑल्सो अ मेटल। देर आर मैनी मोर मेटल्स, ठीक है, ये कॉमनली हम यूज़ करेंगे, इसलिए इनका नाम और सिम्बॉल्स आपको याद होने चाहिए, ओके। सो क्या देखा आपने कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। लेट अस सी रिएक्शंस। पहला, सोडियम रिएक्ट्स विग्रसली, विग्रसली मतलब फास्ट, एकदम तुरंत, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, विग्रसली, वॉयलेंटली you can say, with the oxygen present in the air to form sodium oxide. सोडियम का सिंबल क्या था, हमने देखा अभी जस्ट, Na, ऑक्सीजन मतलब O2, क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड, दैट इज Na2O. As a result, it catches fire if left open in air. सोडियम एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है, अगर आपने उसको खुला रखा, ठीक है, कहीं भी ओपन एटमॉस्फेयर में रखा तो वो तुरंत फायर कैच कर लेता है एटमॉस्फेयर के साथ, बिकॉज इट इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। मेटल को रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हम पढ़ेंगे, दैट इज़ इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आगे आप देखोगे तो उसके बेसिस में सोडियम बहुत टॉप पे प्लेस्ड है, इसलिए वो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है। सो इट इज़ देयरफॉर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। सो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वाई is sodium kept immersed in kerosene? केरोसिन में क्यों इमर्स्ड रखते हैं? तो व्हाट इज योर आंसर? सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन present in our atmosphere, it catches fire easily. Therefore, it is kept immersed in kerosene. I am repeating the answer. Sodium is a highly reactive metal. When it is left open, it reacts with the oxygen present in the atmosphere and catches fire easily. So, to prevent it from the accident, it is kept immersed in kerosene. Okay? रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। तो ऐसा रिएक्शन होता है, देखो सोडियम को अगर मैंने ओपन रखा तुरंत फायर कैच करेगा विथ अ वेरी ग्लोइंग गोल्डन फ्लेम, ओके। रिएक्शन देखो, रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, Na प्लस O2 दैट इज सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू सोडियम ऑक्साइड 2Na2O, ओके। ये फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं वो आप हायर स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे। ओवर हियर मेक श्योर 4Na प्लस O। तो अभी रिएक्टेंट कौन सा है, एरो के इस साइड ये है ना, LHS साइड पे है Na और O2, तो ये क्या हो गए आपके, ये आपके हो गए रिएक्टेंट। और एरो के उस साइड दैट इज RHS साइड में क्या है, सोडियम ऑक्साइड, तो वो क्या हो गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है वो आपको क्लियर्ड है। नेक्स्ट मैग्नीशियम मेटल के साथ क्या रिएक्शन होगा जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। सो मैग्नीशियम ऑन हीटिंग बर्न्स इन एयर, एयर इज नथिंग बट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, विथ अ डेजलिंग वाइट लाइट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत अच्छी डेजलिंग वाइट लाइट प्रोड्यूस होते हैं। मतलब कैसे पता चलेगा कि सोडियम रिएक्ट कर रहा है, कैसे पता चलेगा मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम्स, ठीक है। तो सोडियम जब बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो गोल्डन टाइप फ्लेम दे रहा है, सेम वे मैग्नीशियम बर्न कर रहा है तो कौन सा फ्लेम दे रहा है, वाइट डैजलिंग फ्लेम। दिस टाइप ऑफ फ्लेम यू कैन सी जब मैग्नीशियम को हम बर्न करेंगे। यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन लिया है, उसको बर्न किया है, तो यू कैन ईजिली सी दिस टाइप ऑफ वाइट डैजलिंग फ्लेम, दैट इज नथिंग बट रिजल्ट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जो ऐश बनता है बर्निंग के बाद, वो क्या है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो रिएक्शन आया दिमाग में, सो दिस इज द रिएक्शन
2Mg plus O2 gives you 2MgO. Again what is the reactant over here? ये है RHS साइड में आपका क्या है? reactant. This is your reactant. एंड ये आपका क्या है? प्रोडक्ट. LHS साइड पे आपका, गलत लिखा ना मैंने, ठीक है, करेक्ट करो. तो दिस इज योर LHS एंड दिस इज योर RHS. ठीक है, सो दिस इज योर रिएक्टेंट एंड दिस इज योर प्रोडक्ट. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को रिएक्टेंट. और ये क्या हो गया आपका? प्रोडक्ट. मैग्नीशियम ऑक्साइड इज योर प्रोडक्ट एंड मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज योर रिएक्टेंट. ओके, रिएक्शंस याद रखना. नाउ मेक श्योर, एक और चीज़ याद रखना कि जो ये ऑक्साइड्स बन रहे हैं ना, मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हमने पढ़ा, आगे हमने देखा, ये रिएक्शन हमने जनरल जो रिएक्शन लिखा था, metal plus oxygen gives you metal oxides. So this metal oxides are what in nature? They are basic in nature. Metal oxides are generally what in nature? Basic in nature. ठीक है, दो टाइप के नेचर्स आप देखोगे, एसिडिक और बेसिक. तो मेटल ऑक्साइड्स कौन से नेचर में होते हैं? बेसिक नेचर में. अब बेसिक नेचर में कैसे पता चलेगा? इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. रेड लिटमस को किस में चेंज करेगा? ब्लू. बिकॉज अगर ब्लू में चेंज हो गया मतलब वो बेसिक होता है नेचर में, और अगर लिटमस पेपर रेड चेंज हो गया मतलब वो एसिडिक होता है. ठीक है, लिटमस पेपर एक टाइप का इंडिकेटर है टू चेक वेदर अ सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. अगर कोई सोल्यूशन एसिडिक है तो लिटमस पेपर रेड चेंज हो जाएगा, कोई सोल्यूशन बेसिक है तो लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? ब्लू चेंज. जैसे मैंने आपको सोल्यूशन दिया है एक टेस्ट ट्यूब में, आयरन ऑक्साइड का सोल्यूशन दिया और मैंने चेक करने बोला है कि चेक करो ये सोल्यूशन, मैंने बोला दिस इज सोल्यूशन एक्स. मुझे पता है वो आयरन ऑक्साइड का सोल्यूशन है, बट आपको नहीं पता. मैंने बोला चेक करो कि वो एसिडिक है कि बेसिक. ठीक है, तो लिटमस पेपर लोगे आप, और अगर लिटमस पेपर को डिप करोगे, रेड लिटमस पेपर को सोल्यूशन में डिप करोगे और ब्लू चेंज हो गया, मतलब आप समझ जाओगे कौन से टाइप का ऑक्साइड है? मेटेलिक ऑक्साइड. ठीक है, तो मेटल्स का रिएक्शन क्लियर है ना. वैसे आप बहुत सारे रिएक्शंस देख सकते हो, कॉपर का रिएक्शन भी लिख सकते हो, एल्यूमिनियम का रिएक्शन भी लिख सकते हो ऑक्सीजन के साथ, एंड सो ऑन. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं. नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, दे आर व्हाट? दे आर नॉन मेटल्स. कार्बन का सिंबल है, कार्बन सिंबल इज C, सल्फर इज S, फॉस्फोरस इज P. ठीक है, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स. क्या बनाते हैं? दे फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स एंड दिस ऑक्साइड्स आर एसिडिक. मेटेलिक ऑक्साइड क्या था? बेसिक इन नेचर. नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या है? एसिडिक इन नेचर. अब एसिडिक इन नेचर है तो ब्लू लिटमस को किस में चेंज करेंगे? रेड. ठीक है, मेक श्योर दिस थिंग कि लिटमस पेपर रेड है तो मतलब एसिडिक नेचर होगा. लिटमस पेपर का चेंज अगर कलर ब्लू हो रहा है तो वो बेसिक होगा. ठीक है, सो दे फॉर्म एसिड्स व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है, अभी अगर आप इस ऑक्साइड्स को पानी में डिजॉल्व करोगे तो क्या बनाएगा? वो एसिड बनाएगा, इसलिए उनको एसिडिक इन नेचर बोला जाता है. ये जनरल रिएक्शन है जो आपको याद रखना है. नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू नॉन मेटल ऑक्साइड्स. सो एग्जाम्पल देखते हैं कार्बन का. कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन का सिंबल क्या है? C प्लस O2, तो क्या देगा वो? CO2. दैट इज योर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर व्हाट इन नेचर? एसिडिक इन नेचर. क्या करेगा? ब्लू लिटमस को किस में चेंज करेगा? रेड में. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल सल्फर का. सल्फर बर्न्स इन एयर ऑक्सीजन टू फॉर्म पंजेंट suffocating gas sulfur dioxide. Pungent in the sense having a very strong smell. तो जब सल्फर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा ना, बहुत गंदी स्मेल आएगी आपको, एकदम सफोकेटिंग, आप सह नहीं पाओगे. तो क्या बनाएगा वो? सल्फर डाइऑक्साइड. S प्लस O2 गिव्स यू SO2. ओके, अब
व्हेन दिस ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स एसिड। जैसे मैंने आगे भी स्टेटमेंट में मेंशन किया था आपको कि अगर ये जो मेरे ऑक्साइड्स बन रहे हैं, ये वाले ऑक्साइड्स SO2 और ये CO2, ठीक है, जब आप इसको पानी में डिज़ोल्व करोगे तो ये क्या बनाएंगे, दे फॉर्म एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल CO2 plus H2O gives you H2CO3. This is which acid? Carbonic acid. कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, वाटर में मिक्स किया तो क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिप किया, सल्फर डाइऑक्साइड कौन से टाइप का ऑक्साइड्स है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो वो क्या बनाएगा, सल्फरस एसिड, दैट इज H2SO3 और यू कैन से H2SO4 भी बना सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, रिएक्शंस याद रखना। ठीक है, सो रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्लियर हुआ। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड क्या है नेचर में, दे आर बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर कैसे पता चलेगा, रेड लिटमस लोगे, उसको डिप करोगे सोल्यूशन में तो क्या चेंज हो जाएगा, ब्लू, मतलब वो बेसिक इन नेचर है। एंड नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या है नेचर में, दे आर व्हाट इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर। ओके, नाउ सेकेंड देखते हैं हम रिएक्शन विथ वाटर कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, मेटल्स, मोस्ट मेटल्स रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। So what happens, most of the metals reacts with water to produce metal hydroxide, ठीक है, या फिर मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल, जनरल रिएक्शन देखते हैं, मेटल प्लस वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, या फिर मैंने बोला मेटल प्लस वाटर गिव्स यू मेटल ऑक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन। डिपेंड्स कि कौन सा ऑक्साइड पानी में डिजोल्व हो रहा है, एंड कुछ कुछ ऑक्साइड पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं तो डायरेक्ट वो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो कुछ कुछ मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो पहले मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं और वो मेटल ऑक्साइड्स पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, इसलिए क्या बना देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। नाउ फर्स्ट, सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। अब पानी के साथ भी अलग अलग रिएक्शंस होता है, मेटल हर एक वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी सीरीज वो रिएक्शन करता है। अब सोडियम जैसे बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है तो सिंपल वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। अब ये जब रिएक्शन होता है ना, बहुत लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होता है विच रिजल्ट्स इन हाइड्रोजन कैचिंग फायर। मतलब इतना ज़्यादा हीट रिलीज करेगा कि वो इजीली फायर कैच कर सकता है। आप देख सकते हो इस स्लाइड में, ठीक है, बहुत इजीली। देखो कैसे सोडियम लिया, उसके बस पानी का बस एक ड्रॉप डाला तो उसने इतना बड़ा रिएक्शन दिया है, ठीक है, क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है। ओके, रिएक्शन आप देख सकते हो, यू हैव टू नोट डाउन ऑल द रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, और याद भी करना है आपको। तो 2Na दैट इज योर सोडियम, बैलेंस किया है उनको, ये बैलेंसिंग आप हायर स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे। 2Na plus 2H2O दैट इज वाटर गिव्स यू 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। मेटल्स जब पानी के साथ रिएक्ट करते तो क्या बनाते हैं, या तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स या तो मेटल ऑक्साइड्स। ओके, नाउ अभी वाटर के रिएक्शन में ही हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज करोजन। नाउ एनीवन, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज करोजन? हम करोजन किसको बोलते हैं, आपको कोई भी आइडिया है? सो लेट अस सी, नहीं है तो देख लेंगे करोजन क्या है। इस प्रोसेस को ऐसा कुछ देखा है आपने डे टू डे लाइफ में? हैव यू एवर ऑब्जर्व, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, कभी ऐसी चीज़ें कुछ ऑब्जर्व की है अपने एटमॉस्फेयर में? आपने की है ना? बहुत सारे वो मटेरियल्स, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, या फिर जो मॉइस्चर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को करोजन बोलते हैं। डेफिनेशन लिख सकते हो,
The process of slow eating away of metal due to the attack of atmospheric gases and moisture water content on its surface is called corrosion. जब मेटल के सरफेस पे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन का या गैसेस का या जो मॉइस्चर वाटर वेपर प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में उसका अटैक होता है और उसका सरफेस धीरे धीरे सड़ना या डिस्ट्रक्ट होना डीके होना स्टार्ट हो जाता है. डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इज़ नोन एज करोजन. अब ये आप कौन से मेटल्स में देख सकते हो. मोस्ट ऑफ ऑल सारे मेटल्स में तो नहीं, मेनली हाईली रिएक्टिव मेटल्स में देख सकते हो. जैसे सबसे पहला आयरन का एग्जांपल देते हैं. ये आपके डे टू डे लाइफ में आप देख ही सकते हो. जो ग्रिल्स होते हैं आयरन की, आपके घर पे जो भी आयरन के नेल्स ये सब होते हैं, तो आफ्टर सम टाइम्स वो पहले तो बहुत शाइन करते हैं बट थोड़े दिन बाद देखो तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, ब्राउन कलर का लेयर फॉर्म होना स्टार्ट होता है. दैट इज़ नथिंग बट दैट प्रोसेस इज़ नोन एज करोजन. उसे क्या बोलते हैं हम? करोजन. आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर present in the atmosphere to form a brown flaky substance called rust. अब उस ब्राउन कलर के लेयर को हम क्या बोलते हैं? रस्ट. ठीक है. एंड द रस्ट हैज़ द जनरल फॉर्मूला, ये आयरन है आपका Fe. ठीक है. वाटर मॉलिक्यूल मॉइस्चर के साथ प्रेजेंट आपके एटमॉस्फेयर में, तो वो आपको बनाता है Fe2O3.XH2O. दिस इज़ नथिंग बट योर रस्ट. इसको क्या बोलते हैं आप? रस्ट. ठीक है. दिस प्रोसेस देख सकते हो ना, ब्राउन कलर की लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. अब ये करोजन को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, मतलब बचा भी सकते हैं. तो अगर आपने देखा होगा घर पे आपके जो आयरन की ग्रिल्स है उनको ब्लैक कलर का पेंट कर दिया जाता है. ठीक है. सो वो ढक जाता है, तो उस पेंट से क्या कर सकते हैं, वो मॉइस्चर या फिर एयर डायरेक्टली उस पर अटैक नहीं करता, वो उस पेंट की कोटिंग पे अटैक करता है. ठीक है. सो बाय अप्लाइंग पेंट, ऑयल, ग्रीस, आप ये करोजन ऑफ आयरन को थोड़े टाइम तक प्रिवेंट कर सकते हो. लॉन्ग टाइम तक नहीं, थोड़े टाइम तक के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है. सेम वे कॉपर भी मेटल है. तो कॉपर ऑब्जेक्ट्स गेट कोटेड विथ अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड एज बेसिक कॉपर कार्बोनेट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द टाइम इंटरवल. एकदम से रिएक्शन नहीं होता, इसको थोड़ा टाइम लगता है. इट टेक्स अ पैसेज इंटरवल ऑफ टाइम टू अकर दिस प्रोसेस. एंड द ग्रीन सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट. ठीक है. क्या करता है, आपके एटमॉस्फेयर में कॉपर है. ठीक है. इट रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर. ठीक है. ये आपका मॉइस्चर है, इसके साथ रिएक्ट करता है एंड रिजल्ट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CuOH होल ट्वाइस. ठीक है. एंड CuCO3. दिस इज़ नथिंग बट योर ग्रीन ऑक्साइड. ये आपका ग्रीन ऑक्साइड है और ये आपका मॉइस्चर है, ये आपका रिएक्शन है. ठीक है. प्लस याद रखना. बेस्ट एग्जाम्पल करोजन ऑफ कॉपर का मैं दे सकती हूँ, ग्रीन कलर की कोटिंग, आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी. स्टैचू ऑफ लिबर्टी जब बनाया गया था तो वो प्योर कॉपर का बना हुआ था. कॉपर का है तो ब्राउन कलर का होगा, बट अगर अभी आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी की पिक्चर को सर्च करोगे तो वो आपको ग्रीन कलर का दिखेगा. वाई? बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, कॉपर ने रिएक्ट कर लिया मॉइस्चर के साथ. एंड मॉइस्चर में क्या प्रेजेंट था? वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एंड धीरे धीरे वो ऑक्सीडाइज हो गया टू फॉर्म अ ग्रीन कलर कोटिंग. सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल. तो जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया गया था वो कॉपर का बनाया हुआ था. वो प्योर कौन से कलर का था? ब्राउन कलर का. विद द टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, इट रिएक्टेड विथ वाटर and your CO2 and results to the formation of green color of Statue of Liberty. That is nothing but the coating of green coating of copper. That is nothing but उधर corrosion हो गया उसका. ठीक है. Now next, silver. Silver is also a metal.
सिल्वर ऑब्जेक्ट्स बिकम blackened एंड लूज देयर शाइन विद पैसेज ऑफ टाइम। ये आपने देखा होगा सिल्वर आर्टिकल्स का, घर पे आपकी मॉम भी ज्वेलरी पहनती है, सिल्वर्स के पायल पहन लेगी, वो बिच्छियाँ होती है छोटी छोटी रिंग्स टाइप, टो रिंग टाइप, ठीक है, वो पहनते हैं, तो डेली वेयर में पहनते हैं। तो आफ्टर सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम, महीनों के बाद वो ब्लैकिश होना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। सो हाउ इट, बिकॉज it with the passage of time this happened due to the reaction of silver with the hydrogen sulfide gas। हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट है, तो वो उसके साथ रिएक्ट करके क्या करता है, ब्लैक कलर का लेयर बनाता है। करोजन कौन से कलर का हो जाता है यहाँ पे, ब्लैक, ठीक है। रिएक्शन में लिख रही हो Ag, सिल्वर है आपका, सिंबल ऑफ सिल्वर, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गिव्स यू Ag2S प्लस H2, ये रिएक्शन होता है, ठीक है। ये आप करोजन देख सकते हो आपके सिल्वर आर्टिकल्स में। सिल्वर देखो कितना शाइनी था, आफ्टर पैसेज ऑफ इंटरवल टाइम ब्लैक कलर का आप कोटिंग देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप द करोजन पार्ट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद बेस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। सो आप सारे रिएक्शन को अच्छे से याद करोगे, नोट डाउन करोगे, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू आर फ्री टू आस्क द डाउट्स। थैंक यू।